Hello and very good evening to all. Welcome to Career Defense School. Students, today's lecture we are going to discuss about Sainik School Exam 2022 Class 6 and उसका जो सेक्शन ए है विच इज ऑफ इंग्लिश हम उसके बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे. आज का पेपर अगर बात करें तो वैसे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं. इट वॉज वेरी इजी. जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था वो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसको सॉल्व करने से पहले जो हमने एक ट्रिक की बात की है कि बेस्ट वे है किसी भी पैसेज को सॉल्व करने का टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. So let's start reading the question first. The first question was, which of the following statement is not true about the passage? Colossus of Rhodes was built to honor Helios. Next, Pharos of Alexandria was a lighthouse. Next, the Great Pyramid of Giza was destroyed. Next, Hanging Garden of Babylon was built by the king of his wife. For his wife, right? Of course, इसके जो आंसर है हमें पैसेज को पढ़ने से ही पता लगेंगे. तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम. Which of the seven ancient wonder of the world was as tall as the 4-story building? तो चलो नाम देख लेते हैं. पहले 7 एंशिएंट वंडर्स के बारे में है, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, तो देख लेते हैं कौन से हैं. फिर उसमें से आंसर फाइंड करेंगे कौन सा जितना लंबा है जितना कि 4-story बिल्डिंग हो सकता है. सो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, स्टैच्यू ऑफ जीसस, ओके, म्यूजियम ऑफ हेलिकार्नासस and the colors of Rhodes. Next, what is the meaning of the underlined word the lighthouse at Halicarnassus? A kind of fabric है, a country or a building to guide the ships or a temple. हमें lighthouse का meaning पता करना है basically, right? So let's start reading the passage. Passage है about the 7 ancient wonders of the world. So let's start reading. The ancient Greek made a list of palaces that people should see. The list was named the 7 Wonders of the World. Only one of the ancient wonders can be found today in Giza, which is in Egypt. This is the Great Pyramid of Giza. It is one of the 3 great pyramids built around 2500 BC. The Hanging Garden of Babylon are another ancient wonder. They are located on the bank of river Euphrates. This area is near Baghdad in Iraq. A king built this garden for his wife. Of course, I am reading for you, beta. Right? So, please read with me. The statue of Jesus was built in Olympia, Greece in 457 BC. This statue was built to honor the Greek गॉड जीसस. अब देखो इनको पढ़ते हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं. ठीक है. दिस स्टोरी वाज एज टॉल एज 4-story बिल्डिंग. अब समझ आ रहा है. स्टैच्यू ऑफ जीसस जो था वो था 4-story बिल्डिंग के जितना लंबा, राइट? इन एडिशन टू जीसस द ग्रीक्स built another very big statue to honor the Greek sun god Helios. The wonder is known as Colossus of Rhodes. Built around 550 BC, the temple of Artemis at Ephesus was considered the most beautiful structure on earth. Okay, Ephesus was an ancient city that was located in what is now Turkey. The mausoleum at Halicarnassus was also constructed in Turkey. The only wonder built in for practical use was the Pharos of Alexandria that was a lighthouse of the coast of Egypt. देखो लास्ट क्वेश्चन का हमें आंसर मिल रहा है कि Pharos of Alexandria क्या था बच्चे? एक लाइट हाउस था फॉर द कोस्ट ऑफ इजिप्ट. अब लाइट हाउस हमें पता लग गया, कोस्ट यानी कि किस बैंक की तरफ किनारे था, किसी भी समुद्र के बीच के लिए था, राइट? It was one of the tallest building
ठीक है, tallest building in the world. Let's start answering. So the very first question, which of the following statement is not true about the passage? तो हमारी जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल ट्रू है कि कॉलस ऑफ रोडिस वाज बिल्ट टू ऑनर हेलियस, बिल्कुल सही है. Fortress of Alexandria was a lighthouse. Of course, it is correct. Fourth option is Hanging Garden of Babylon was built by the king for his wife. Was right, is right actually. Third one is the wrong statement. The Great Pyramid of Giza was destroyed. कहीं भी हमने पैसेज में ये नहीं पढ़ा, ठीक है, कि ये डिस्ट्रॉय कर दी गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिसका आंसर हमने पैसेज पढ़ते टाइम ही दे दिया था कि 7 वंडर्स में से कौन सी जो बिल्डिंग थी वो एज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग थी. सो ऑफ कोर्स द स्टैच्यू ऑफ जीसस. सो द सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो करेक्ट. सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द लाइट हाउस. मीन्स क्या है लाइट हाउस का? अ बिल्डिंग टू गाइड द शिप. वो बिल्डिंग जो शिप को गाइड करने के लिए यूज की जाती है उसे हम लाइट हाउस बोलते हैं, राइट. जो कि नॉर्मली जो है किसी बीच पे या किनारे पे जो बनाई जाती है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डू एज डायरेक्टेड है बच्चे. वी नीड टू फिल द करेक्ट वन हियर. सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, माय मदर एडवाइज्ड मी टू स्टे डैश होम. देखो बेटा, when we talk about it is the question from preposition firstly, right? Preposition से ये question आया है. When we talk about exact place, so we'll use at. So D is the right answer. बच्चे मैं क्वेश्चन और ऑप्शंस इसलिए रीड कर रही हूँ सो दैट कि आप अपने जो पेपर में से मैच कर ले और करेक्ट आंसर को आप फाइंड कर सके, राइट. बहुत इजी है ये, हमने सबने किया हुआ है हमारी क्लासेस में. Question number 5 is fill in the blank with appropriate article. Article कौन से होते हैं हमारे? A, N and the, right? So question हमारा क्या है? Rakesh is dash excellent science teacher. Teacher is noun. Article are those nouns which are used to specify whether the noun is specific or non-specific. स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक नहीं है. सो ऑफ कोर्स आर्टिकल विल यूज अकॉर्डिंग टू द नाउन. टीचर के अकॉर्डिंग नहीं यूज करेंगे. इसके साथ एक एडजेक्टिव लगा हुआ है एक्सीलेंट. ई से साउंड कर रहा है विच इज अ वॉल साउंड. सो वॉल के लिए वी हैव एन आर्टिकल एन. ऑफ कोर्स हम एन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है. एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगेगा, टीचर के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, ठीक है. ये भी हमारी वर्कशीट से था, अगर आपको याद हो, जिन बच्चों ने किया हुआ है ऑफ कोर्स उन्हें याद है. क्वेश्चन नंबर 6 इज जंबल वर्ड. वाओ, वेरी इजी बच्चे. देखो जंबल वर्ड को करते टाइम मैंने आप लोगों को बताया है कि एक ही चीज को फॉलो करना है विच इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ऑप्शन को, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द सब्जेक्ट. सो एज यू कैन सी ऑप्शन ए इज वेव्ड, बी शी, then read and cheerfully us. Okay, so first of all subject find करना. So she is the subjective pronoun जो कि सिर्फ subject की जगह यूज हो सकता है. तो नंबर 1 she. उसके बाद में हमने लगाना है verb. verb क्या हो गया? waved, right? So देखो अगर B और A को ही हम करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे क्लियर है, फोर्थ, राइट. क्या आंसर बन रहा है? She waved. किसको वेव किया? us, ठीक है, करेक्ट. She waved us and greet cheerfully. बिल्कुल एडवर्ब है, वो लास्ट में लग जाएगा, करेक्ट. नेक्स्ट fill in the blank with the correct option again. It was a steep dash from the hilltop. देखो हिल टॉप क्या होता है? टॉप ऑफ द हिल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है. स्टीप क्या होता है बच्चे? खड़ी ढलान टाइप, नीचे की तरफ, ठीक है. तो ढलान के लिए अगर नीचे आना हो तो कहां से आएगा? डिसेंट फ्रॉम हिल टॉप, ऊपर से नीचे की तरफ, है ना. तो डिसेंट
तो इसका मतलब हमारा आंसर हो रहा है थर्ड वाला, DESCENT, डिसेंट, जिसका मतलब होता है नीचे की तरफ। ठीक है, इट वॉज अ स्टीप डिसेंट फ्रॉम द हिल टॉप, खड़ी ढलान तक। करेक्ट है। ये होता है बच्चे डिसेंट, विच मीन्स जैसे हम कहते हैं ना डिसेंट, अच्छा है ना, ही इज अ डिसेंट बॉय और अ गर्ल, राइट, वी कैन से दैट। क्लियर है। सो ये हमारा होमोफोन से था, है ना, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट अगेन हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो भी क्या है, जंबल वर्ड से आया है। अगेन बहुत इजी है बच्चे, फिर से हम वही पैटर्न को फॉलो करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या बनता है बच्चे, तो सब्जेक्ट हम क्या हैवी तो नहीं बना सकते, राइट। तो हम बना सकते हैं कि द, देन हैवी स्नो, ऑफ कोर्स ये हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। तो नंबर 1 इज द, नंबर 2 बी हैवी, so the heavy snow ने क्या किया, verb covered किसको, everything को। so answer is CBA then ED, so answer is CBA ED, fourth is the right answer, correct। देखो कितना इजी था, बहुत इजी बच्चे, ये नंबर तो फ्री के दिए है सैनिक स्कूल ने, ये जाने नहीं चाहिए थे, है ना। नेक्स्ट है हमारा नाउन से आया है। ऑफ कोर्स हमसे जो पूछा गया है कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन आया है, अ डैश ऑफ सोल्जर्स मार्च इनटू द बैटल ग्राउंड। सोल्जर्स का बच्चे क्या होता है, ट्रूप होता है, राइट। A troop of soldiers marched into a battleground. Of course, you can match your answer, please. ठीक है। Next बच्चे, choose the correct pronoun. So our question is she the girl dash won the first prize? Which is used for the choice, whom is used for the person but objective pronoun, right, noun or pronoun। that नहीं यहाँ लग सकता, who is used for the subjective pronoun। is she the girl जिसने प्राइज जीता, तो who won the prize, correct, it's a relative pronoun बच्चे। लास्ट टाइम मैंने क्लास में भी बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन टैग, बहुत इजी है बच्चे। यू पेड द बिल, पेड इज व्हाट बच्चे, इट इज वर्ब सेकंड फॉर्म। एंड मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास क्वेश्चन टैग में हो तो इसका क्वेश्चन टैग बनता है डिड से, राइट। एंड द सेंटेंस इज पॉजिटिव, सो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। तो डिडंट बन गया और प्रोनाउन साथ में लग गया, तो डिडंट यू, दिस इज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन सेकंड is the right answer, right? Good. Question number 12. Identify the type of sentence. Mohan gave me a 10 rupee note. In this sentence, हमें क्या मिल रहा है? It is an information. Of course, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई हैरानी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो ये तीनों ऑप्शंस ही नहीं हमारी आती, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। मींस हमें कोई फैक्ट बताया गया, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, सो इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, राइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट वर्ब। द वाटर डैश फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट। जैसे कि मैंने क्लास में भी आपको बहुत बार बताया है कि हमें बहुत बार जो वर्ब है वो सेंटेंस में से जो गिवन वर्ड्स हैं वही बता देते हैं। सो लास्ट नाइट मींस पास्ट, राइट, और एक्शन सिंपली पास्ट एक्शन बताया कि एक पास्ट एक्शन हुआ था, राइट। तो मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का यही तो है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ड्रिपिंग तो नहीं लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं लगा, विल ड्रिप नहीं लग सकता, फ्यूचर नहीं, तो ड्रिप्ट, करेक्ट। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। ड्रिप मतलब क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी का गिरना, गॉट इट। नेक्स्ट बेटा, ओके, यहां तक सभी को क्लियर है, होपफुली सभी को क्लियर होगा और आप अपने आंसर मैच कर रहे होंगे, करेक्ट। नेक्स्ट इज स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन,
जिसकी हमने बहुत बार प्रैक्टिस भी की है। करेक्ट। स्पेलिंग करेक्शन, तो मतलब हमें 4 स्पेलिंग मिले, वी नीड टू फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, इन्होंने बोला है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था, या तो करेक्ट स्पेलिंग पूछ लेते हैं या फिर मिस स्पेल्ड पूछ लेते हैं। राइट, तो इन्होंने करेक्ट स्पेलिंग पूछा। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के स्पेलिंग गलत है। द फोर्थ वन इज द राइट आंसर, अपॉइंटमेंट, APPOINTMENT। करेक्ट। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। आपको सेंटेंस गिवन है, आधा तो अंदाजा हमें सेंटेंस ही लग जाएगा कि कौन सा इसका सिनोनियम है। नियरेस्ट मीनिंग वर्ड फाइंड करना है, दैट मीन वी नीड टू फाइंड द synonym, right, of the given word. So there was a momentous moment in the cricket. Momentous moment मतलब insignificant, sudden या abrupt, अचानक नहीं हो सकता, very important. Momentous means very important. So option second is the right answer. Correct? Next, choose the correct adjective here. Question number 16. Yesterday was the dash day of my trip. देखो बच्चे, अब इसमें तो शायद सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक तो हमें यहाँ पे द लगा के दे दिया इन्होंने, और हमने बात की थी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं, तो अगर कंपैरेटिव डिग्री लगा होता है तो नॉर्मली हमारे साथ दैन लगा मिलता है हमें, या फिर एज पॉजिटिव डिग्री एज मिलता है। करेक्ट। अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री लगाना है तो उसके साथ द यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द जरूर लगता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रिप्स में से एक दिन की बात की गई है, उसको कंपेयर किया गया है। राइट। सो मोर वर्स तो होता या मोर या मोस्ट वर्स होता ही नहीं है, बैड वर्स वर्स्ट होता है। सो थर्ड वन, जो थर्ड है हमारा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी इजी बच्चे। इलिटरेट का लिटरेट का ऑपोजिट पूछा है। तो देखो, बोलते वक्त भी हमें समझ आ रहा है कि लिटरेट का इलिटरेट, पढ़े लिखे का अनपढ़। राइट, द करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट है, चूज द ऑपोजिट ऑफ अर्लियर। अर्लियर मीन्स बच्चे प्रीवियस, तो ये तो सिनोनियम हो गया, फॉर्मर भी सिनोनियम हो गया। ठीक है, और ये टाइम के कंसेप्ट में है। इसका आंसर बनता है फोर्थ वन, लेटर। ऑफ कोर्स ये लेटर का मतलब भी बाद में होता है, बट इट इज यूज्ड फॉर द पोजीशन। राइट, सो फोर्थ आंसर इज द राइट वन। राइट। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ गिगेंटिक। ठीक है, गिगेंटिक माने बहुत बड़ा, दैट मीन वेरी बिग। ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर। Choose the correct option. A cobbler is a person who dash. Very easy बच्चे, अब इससे ज्यादा इजी वो क्या पूछ सकते थे सैनिक स्कूल वाले, है ना? कि कॉबलर कौन होता है? रिपेयर टैप्स? नो। मेंड क्लोथ्स? नो। मेंस बल्ब्स? नो। रिपेयर फुटवेयर? मीन्स अगेन ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21। होपफुली कि आप लोगों के बहुत अच्छे गए होंगे ये, है ना पेपर, बिकॉज इंग्लिश का पोर्शन तो बहुत इजी था बच्चे। इट इज अ काइंड ऑफ अ बोनस मार्क्स। जितने ये पेपर, जितने क्वेश्चंस हमारे आए हैं, बहुत बहुत इजी आए हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर्ड एज दे सॉ बर्ड्स ऑफ अ फेदर डैश टुगेदर। ये प्रोवर्ब आया बच्चे। ठीक है, बर्ड्स ऑफ फेदर डैश, फेदर से पता लग रहा है बर्ड्स ऑफ फ्लॉक टुगेदर, मींस एक ही थली के चट्टे बट्टे, है ना, एक जैसे हैं सारे फ्रेंड्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीइंग द वाउंडेड बर्ड डैश शी डैश हर मदर। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, वाउंडेड इज वर्ब सेकंड फॉर्म। सीइंग जो है हमारा वर्ब प्लस आईएनजी, इसको एज अ जर्नड यूज किया गया है, नाउन है। सीइंग द वाउंडेड बर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म से स्टार्ट है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी पास्ट होगा। तो कॉलिंग अकेला तो नहीं आएगा, कॉज देयर इज नो ऑक्सिलरी। राइट, कॉल प्रेजेंट है, वॉज कॉलिंग होता है एक्शन कर रही थी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो कॉल्ड मीन्स सीइंग द वाउंडेड बर्ड शी कॉल्ड हर मदर, दैट्स इट, सिंपल। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, राइट, जो है एडवर्ब से। क्वेश्चन इतना इजी है कि अगर हमें एडवर्ब का मीनिंग पता हो तो हम जो है क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर देंगे। एडवर्ब क्या होता है? दोज वर्ड विच आर यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब। जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। सो लेट्स रीड द सेंटेंस कि द डॉक्टर विल सी यू लेटर। सो द डॉक्टर इज सब्जेक्ट, विल ऑक्सिलरी, सी वर्ब, यू आपको देखा है ना, तो आपको देखेंगे। लेटर, लेटर विल टेल यू द टाइम। मतलब एडवर्ब कौन से होते हैं? जो वर्ब के बारे में बताते हैं कि एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कितनी बार हुआ, राइट। तो कब हुआ का आंसर हमें मिल रहा है, करेक्ट, या कब होगा? डॉक्टर विल सी यू लेटर, तो लेटर इज एडवर्ब जो हमें एक्शन के बारे में बता रहा है, राइट। सो ऑप्शन 1 इज द फर्स्ट आंसर। आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24, इनकरेक्ट पेयर बताना है बच्चे। ऑड वन आउट की तरह दिया है इन्होंने, देखो। नाइफ का प्लूरल नाइफ्स बनता है, बिल्कुल सही है। वुमेन का वुमेन होता है, करेक्ट। डियर का डियर ही रहता है, बट माउस का माइस बनता है बच्ची, माउसेज नहीं होता है, ये रॉन्ग है। सो ये हमारा इनकरेक्ट पेयर है, ऑप्शन 4, राइट। टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंजंक्शन। देखो बच्चे, सेंटेंस क्या कंजंक्शन? दोज वर्ड विच आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स और टू नाउन्स, करेक्ट। सो मंजीत कैन नॉट ड्राइव, मंजीत ड्राइव नहीं कर सकता, क्यों? दैट शी हैज अ लाइसेंस। अब यहाँ पे कंडीशन डाली गई है, कब तक नहीं कर सकता या कैसे नहीं कर सकता। तो ऑल्दो येट नहीं लग सकता, इफ भी कंडीशन के लिए होता है, बट यहाँ पे नहीं है। मंजीत कैन नॉट ड्राइव इफ ही हैज लाइसेंस, नहीं, अनलेस ही हैज लाइसेंस। जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं है तब तक वो ड्राइव नहीं कर सकता। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, अनलेस, करेक्ट। बच्चे, एग्जाम बहुत इजी था, होपफुली कि आप लोगों ने अपने आंसर्स जो है मैच कर लिए होंगे, करेक्ट। और जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों ने वर्कशीट्स अच्छे से प्रैक्टिस की थी तो फॉर श्योर ये हमारी सारी वर्कशीट्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत इजी था पेपर, ठीक है। तो इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन, करेक्ट। कहीं डाउट आता है या कुछ तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल आंसर यू, करेक्ट। और होपफुली आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट एंड थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।